ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਗੁਰ ਬੰਦਪ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਸਖਾਇ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਪੰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਖਸ਼ੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤਾਂ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं फिर बेनती करांगा, जितनी संगत है फतेह जरूर बुलाया करो, क्योंकि वाहिगुरू शब्द कहते हैं साड़ी रसना पवित्र होंदी है। फिर उच्चारण करो जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले ऐतवार तो लैके कल तक जो असां विचार कीती है उस ते सिर्फ एक पंछी चात अर्ज करांगा। हर रोज़ दास शाम की कथा विच भी बेनती करदा आ रहा कि जो आपां बोलने आप जी सुनते हो, साडे ज़हन विच जरूर रहे आपां बोलिया की और सुनिया की है। इस तो अगला कदम होवेगा कि उस बोले और सुने हुए नूं असी जिंदगी विच उहदी प्रैक्टिस कर सकीए।
ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਹਿਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਕਾਵਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਵਾਰਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਵਿਦਿਆ ਵੀਰ ਦੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕਵੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੀਕਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੰਦ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ 7 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਾਂ ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਬੋਲੇ ਕੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਥਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾਦਾ ਸਮਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੇ 'ਚ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਰੱਬ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਕਲੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਿਹਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਰਤਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਨਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, 4 ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਵਾਰੀਖ ਵਾਰਤਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਖੀ, ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਖੀ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਿਲਾਸ, ਔਰ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਆਪ ਜੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤਿਆ ਆਖੀ, ਇਹਦੇ 2 ਅਰਥ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਆਂਖੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਖਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਆਖੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਉਂ ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡੇਟਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਹੈ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ, ਤਤ ਸਿਓ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ, ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰਕੀਓ,
अमरदास अमृत छत्र गुरु रामै दियो, गुरु रामदास दर्शन परस कै मथुरा अमृत बैण, मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुरु अर्जुन पिखो न। पंज गुरु साहबाना का जिक्र है, सिर्फ स्पिरिचुअल जिक्र किया जा रहा है, बाकी नहीं की काम किते। गुरु ग्रंथ साहिब च एक बाणी है, उसका सरलेख ही आखी है। वो बाणी है, राम कली की वार राय बलवंड तथा सत्तै डूम आखी। जेड़े सिंह इहदा पाठ करते हैं, मैं पिछले साल भी कहा जरूर करया करो अमृत वेले राम कली की वार का पाठ। आपां विकास करिए बाणी पढ़ लिखो। वो आखी दा अर्थ है बोली, ते उन्हां वो कुछ आख्या जो कुछ अखां नाल देखिया। उस तो बाद साडे कोल जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब तो बिना आउंदे ने, भट्टां दे सवैयां ने आखी ते आंखी दो होए। उन्हां ने अखां नाल देखिया, देख के फिर क्या, जदों आप सवैया पढ़दे हो, रहो संत हों टोल साध बो तेरे डिठे, सन्यासी तपस्या हैं मुखों ए पंडित मिठे, बरस एकों फिरो करना परचो लायो, कहते हैं कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो, हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुण को क्या कहूँ, गुरदई मिलायो भिखिया जिव तू रखें। ते वरों कहते सी अखां नाल बहुत नूं देखिया, पर जो गुरु अमरदास नूं देखिया इस वर्गा कोई नहीं मिलिया। इहदा मतलब आखी भी है ते आंखी भी है। अखां नाल देखिया, जबान तो आख्या। उस तो बाद साडी हिस्टरी नूं जे कोई बयान करदा है, उदों बाद शब्द आउंदा साखी। पहला आखी, आखी गुरु ग्रंथ साहिब, फिर आउंदा साखी। वैसे साखी एक शब्द असी हिंदी का वरतने साक्षी, इस गल का वो साक्षी है अर्थ है गवाह। साखी का अर्थ सिक्ख्या भी है, तो गुरमुखो साखी का अर्थ गवाही भी है। जिवें असी पाठ करने हैं कि सख में जोत जोत है सोए, तिसदा चानन सामने चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट होए। ते साखी का अर्थ है सिक्ख्या। महाराज ने साखी का अर्थ गवाही भी दिता है। अर्ज करांगा फिर साडे कोल साखी आउंदी है, भाई बाले वाली जन्म साखी, पुरातन जन्म साखी, बाबे पिरथीए दे पुत्र मेहरवान की जन्म साखी, मेहरवान दे पुत्र चतुरभुज खारजी की जन्म साखी। साडे कोल सब तो अखीर जिहड़ी जन्म साखी उहदा नाम है भाई मनी सिंह वाली जन्म साखी। ये साखियां होर बेनती, एक साखी उन्होंने हाफजा वाली जन्म साखी, वलैत वाली जन्म साखी, एक शब्द साडे वरतदे ने पुरातन जन्म साखी। साखियां विचों सब तो ज़्यादा अथेंटिक विद्वान जिन्होंने मानते हैं वो पुरातन जन्म साखी है। भाई बाले वाली जन्म साखी च बहुत मिलावट है, इन्हूं मलना चाहिए, क्योंकि खंदालियां ने, क्योंकि साखी ते जदों किते फिर आपां गल करांगे, उस विच बहुत काफ़ी जिक्र किया गया है मनमत का। बाबे खंदाल नूं गुरु तो उच्चा दर्शाण का यतन किया गया। मिलावट है उहदे विच, पर सानू हंस बिरती नाल चुनना पएगा। मैं बेनती करांगा कि सानू साखी खंडन नहीं करनी चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द साडे कोल कसवट्टी है, हजूर का फिर जीवन साखियां है। पहला पढ़ियां जांदियां सन घरां च, अज नहीं पढ़ियां जांदियां। बजुर्गां नूं पता होना, रात नूं सौण लग्गियां सानू पता है कि साडे घर विच रोज़ाना एक साखी जदों छोटे सा सुनाई जाती सी हजूर दी जन्म साखियां विचों। दास ने तकरीबन कौमे च नहीं, मैं कहंदा मैं सारियां जन्म साखियां दे दर्शन किए, सारियां पढ़ियां ने। और जे कोई शौक रखदा है इल्म दा, इनू पढ़न दा, सारियां इक्को थां ते मिल जाणगियां। उहदा नाम है कि जन्म साखी परंपरा डॉक्टर कृपाल सिंह दी एडिट की है, पटियाला यूनीवर्सिटी ने छापी है। प्लीज़ उन्होंने पढ़ियो। पहला तो वो काफ़ी पन्ने वो साखी की व्याख्या करते हैं खैण की, पर जिथे जिथे मिलावट आई उत्थे नाल ट्यूकां लिख दित्तियां। मेरे कहण तो बाद पहला सी साडे कोल जी आखी, फिर सी साडे कोल साखी, उस तो बाद फिर पोइट्री का वक्त आया। साखी जिहड़ी है वो पोइट्री च नहीं, वो कविता च नहीं, वो वार्तक है, पर शब्दावली बड़े कमाल दी। इन्नी मिठी शब्दावली है जिथे वो गुरु की शरदा के बचन वरदा है, कमाल कर दिंदा है। मैं फिर बेनती करांगा। उस तो बाद आउंदी पोइट्री, काव्य ग्रंथ,
ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਾਸ। ਇਹ 3 ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ, ਦੂਸਰੇ 2 ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ। ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਾਸ 10ਵੀਂ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਬਿਲਾਸ ਆਉਂਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਉਂਝ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਗੁਲਮਲ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਰਚ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਜਾਏ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਜੰਮੇ ਕੋਈ ਮਾਈ ਕਾ ਲਾਲ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਇੱਕ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਮ ਦੀ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖੇ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸ਼ਹਾਲਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਰਥ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸੱਜਣ ਸ਼ਰਧਾ 'ਚ ਭਿੱਜੀ ਕੋਈ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ 2 ਗ੍ਰੰਥ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇੱਕ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਸੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ। ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਏ ਸਿੰਘ, ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੰਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਭੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਗੋਰਾ ਲਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੌਲਵੀ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਤਸਵੀ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਉਂਝਾਂ ਲਾਏਗਾ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਰਲਨ ਮਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਦ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੇ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਸਨ ਜੀ ਉਦੋਂ, ਕੀ ਡੋਗਰੇ ਕੀ ਦੂਜੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦਾ ਭੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਬਦਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਖ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਤਾਨੀ ਰਾਜੇ ਹੋ ਕਿਤੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਰਾਜੇ ਹੋ? ਮੁਗਲ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਰਾਜਪੂਤ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਚੱਲਦੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿਤੇ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰਨਲ ਮਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ? ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਵਾਰਸਾਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਦਿਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਯਾਦ ਕਰੇ ਖਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ
बड़ी डिटेल नालों चलता है। उस तो बाद आउंदा है जी पंथ प्रकाश एक होर, वो लिखिया जाता है ज्ञानी ज्ञान सिंह जी वालों। वो हिस्टरी विच है, वाहिगुरू पोइट्री विच है, उस विच गुरु साहिबाना दा। फिर वो अगे चलता मिसलों तक, फिर उतों तक जाता है जिहड़े राज घराने ने, पटियाले वाले, जींद वाले, नाभे वाले। हाँ, उसनूं जे पोइट्री च नहीं कोई पढ़ सकता तो यदा वारतक विच पंजाबी विच इहदा नाम है तवारीख गुरु खालसा। ये पढ़न वालियां किताबां ने। मैं तां बेनती थोड़ी इस करके नहीं कि मैं हिस्टरी की क्लास लैन लगा। मेरे कहन तो मुराद सी गुरु गोबिंद सिंह जी नूं कविता विच भी लिखिया, गुरु गोबिंद सिंह जी नूं वारतक भी लिखिया, गुरु गोबिंद सिंह जी नूं अतमत अनमत वालियां ने भी लिखिया, गुरु गोबिंद सिंह जी नूं गुरमत वालियां भी लिखिया। पर एक गल चेते रखियो, गुरु गोबिंद सिंह मुकम्मल किसी तो भी बयान नहीं हो सकिया। अर्ज है कि गुरु गोबिंद सिंह जी की सिफत फिर भाई गुरदास दूजा लिखता है, जेड़ा दरबार साहब नहीं कीर्तन इत्थे हो सकता है, चलो करने, दरबार साहब कदी कीर्तन नहीं हो सकता। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। उस वार विच तुसीं पढ़दे हो, वह प्रगट्यो मर्द अगंबड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। असी शुरू किया सी वह प्रगट्यो पुरख भगवंत रूप गुरु गोबिंद सूरा। आपनूं पता है पिछले ऐतवारे तुक तो शुरू हुई सी कथक, गुरु गोबिंद सूरा प्रगट्यो शब्द वरत्या है। उंज वैसे उस तो बाद अल्लाह यार खां जोगी दी, जोगी अल्लाह यार खां, ओदी नज़म सब तो ज़्यादा मकबूल हुई। हालां सेनापत लिखदा है, पर जिन्ना उस नज़म नूं व्याख्याकारां ने, ढाडियां ने, राइटरां ने, लिखारियां ने, फिल्मां वालियां ने, सारियां ने वरत्या। हाँ, वो एक गुरु गोबिंद सिंह बारे बड़ा सोहना ख्याल दिंदा है। वो कहता है इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दो गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, लिखूं सतगुरु के वसब कहाँ ताबे रकम है, एक आंख से बुलबुला क्या कुल बहर को देखे। विनवान कहते ने बुलबुले दी एक अख हुंदी, कहता गुरु गोबिंद सिंह मैं एक बुलबुला वां ते तू समुंदर है, बुलबुला तेरे बारे की कह सकता है। समुंदर दे किनारे बुलबुला, ते बुलबुले नूं पुछो समुंदर दस सकेगा गहरा किन्ना। एक आंख से बुलबुला क्या कुल बहर को देखे, साहिल को देखे, मंझधार को देखे, जां लहर को देखे। वो कहता करतार की सुगंध नानक की कसम है, जितनी भी हो गोबिंद की तारीफ वो कम है। गुरु गोबिंद सिंह का कोई फिर असी शुरू किया जी गुरु गोबिंद सिंह के सूरे शब्द तो, जिन्नी को मैनू समझ पई यतन करांगा अगले सालों च होर सतगुरु के जीवन विचों बख्शिश लैके अपना सांझी करा। असी उस दिन बेनती की सी सूरे शब्द नूं केवल लड़न तक सीमित ना रखो। सूरा शब्द संघर्ष नाल संबंधित है। आप कहोगे लड़ना तो संघर्ष को नहीं। कोई बंदा मानवता दे विच ज्ञान का चानन फैलाउण लई संघर्ष करदा, विद्या का बहुत ज्ञान हासिल करता है। कोई बंदा भ्रष्ट कर्मां तो लोकां नूं बचाउण लई, नशियां तो बचाउण लई संघर्ष करता है। जिहड़ा बंदा संघर्षशील जीवन विचों निकलदा किसी मुकाम ते पहुँच जाए, उसदे लई शब्द सूरमा ही वरत्या जाएगा। असी फिर उस दिन बेनती की कि संस्कृत के एक नाटककार ने 4 तरह के सूरमियां का जिक्र किया सी। उस विचों कहंदा करमवीर, धर्मवीर, युद्धवीर और दानवीर। ये असी वाह चुके हैं। खास करके 2 रह गए ने अज कि सूरमा एक कर्मां का बहादुर हुंदा है, दूजा धर्म वाला, तीजा दान करने वाला, चौथा युद्धवीर। ते दास ने बेनती की सी वो एक एक विच एक एक गुण दसदा है, ते गुरु गोबिंद सिंह कल्ले नहीं जिन्हां 4 विच ये गुण। वो करमवीर, धर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर। पटना साहब कथा करदियां तखत ते उस दिन दाते बख्शिश की। अमृत वेले पुरब वाले दिन मैं देख कर अंदर गया। कथा तो पहला जदों नमस्कार की हुंदा ते ख्याल ही है ना, इको आया ख्याल नहीं गुरु गोबिंद सिंह प्रेम वीर भी है, गुरु गोबिंद सिंह विद्या वीर भी है।
उदन बजुर्ग कह रहे सन, खिमा वीर वीख है, बेअंत गुण ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे। असी सब तो पहला कथा की सी सूरमा कौन, उस विच आत्मक जेतू सूरमा उहदा जिक्र किया। फिर असी कथा की प्रेम वीर, गुरु गोबिंद सिंह प्रभु नूं प्रेम किवें करदे आ, जगियासू नूं प्रेम किवें करदे आ, ते मानवता नूं गुरु गोबिंद सिंह किवें प्रेम करदे आ। असी इसकी व्याख्या की 2-3 दिन। प्रेम वीर तो बाद दास ने बेनती की सी कर्म वीर, शुभ कर्म किवें दृढ़ करांदे आ। फिर असी व्याख्या करते आए हाँ कि विद्या वीर, कल कथा आपां कीती सी दान वीर, इत्थों तक कथा हो चुकी है। अज मैं आप जी नूं बेनती करनी चाहना, धर्म वीर और युद्ध वीर, दोनों शब्द बड़े इकट्ठे हैं। रह के समय विच असी धर्म लफ्ज़ वरतने, एक लफ्ज़ दीन वरतने, एक लफ्ज़ असी अरबी विचों आया वरतने मजहब, मजहब। एक शब्द तुसी अंग्रेजी का वरतते हो रिलीजन, यही शब्द वरते जाते हैं। पहली गल तो धर्म है कि इनू खुल दिले नाल सुनियो, धर्म के बाहर मुखी चिन्ह ये संप्रदायिक ने। धर्म संसार विच सिर्फ ते सिर्फ इको है। ये गुरु ग्रंथ साहिब के जो बोल ने। पहली गल, धर्म के लफ्जी अर्थ की ने? कि धर्म का अर्थ सिੱਖੀ है जी, कि धर्म का अर्थ हिंदू है? असी तो बुद्ध ही, हालांकि बुद्ध ना आत्मा नूं मनदा है ना परमात्मा नूं मनदा है। लोग तो भी कहते हैं बुद्ध धर्म। धर्म शब्द की है? ये अर्थ की ने? गुरु ग्रंथ साहिब विच मैं पिछे भी हुण कथा करके अगे आया भी कदी भी गुरु ग्रंथ साहिब नूं डिक्शनरी के तौर पर ना समझियो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਗਤ अर्थ नहीं मिलने, गुरु ग्रंथ साहिब ਵਿੱਚ परिभाषिक अर्थ मिलणगे। डेफिनेशन की है? कोश ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ अर्थ की ने। ਤੁਸੀਂ महान कोश पढ़ते, कोई शब्द पाओ, घर पाओ, भगत पाओ, गुरु पाओ, वो सारे दसी जाएगा संस्कृत विच आ ने, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आ ने। उस दिन एक शब्द आया दारा, शब्द आया सुत दारा, तो मैं उस दिन बेनती की सी दारा शब्द फारसी विच भी आया तो दारा शब्द संस्कृत विच भी आया। एक था रखवाला आ गया, एक था इस्त्री आ गया। हुण शब्द बड़े इसे तरह ने। यही एक दिन अर्ज की सी, कल परसों मैनूं पुछया सी भाई अनूप सिंह ने शायद किन्ना भी, एक सज्जन पूछ रहे सन ओमी लफ्ज के अर्थ की ने। आपां कीते सन एक बारी कि पढ़िया होवे गुनाहगार तां ओमी साध ना मारीए। ये पूरे गुरु ग्रंथ साहिब सिर्फ 2 बारी लफ्ज आया, तीजी बार किते आया ही नहीं। ओमी पढ़िया अतः ओमिया। आम बंदा जो सुनता वो कहता ओमी शायद ओम विच ही होएगा, क्योंकि ओम शब्द क्या ओमी। असल च सारे विद्वाना गुरमुखा ने लिखा ओमी का अर्थ है अनपढ़। पढ़िया होवे गुनाहगार तां ओमी साध ना मारीए। जे पढ़िया लिखिया गलती करदा तो यदा मतलब ये नहीं कि अनपढ़ नूं ओहदी थां कुट लो। जे पढ़े ने गलती की है तो पढ़े नूं भी सज़ा जरूर मिलेगी। गुरु नानक साहब कहते है नहीं भी ये बंदे गलती की, विद्वान ने जिन्होंने ढिल दे दिओ, जिहड़ा अनपढ़ है इनू सूली टंग दो, जिवें साडा सुभाव बनया पे। जिहड़ा तकड़ा उन्होंने कहते तू 5 दत्त नहीं रखिया गुरुद्वारे, जिहड़ा माड़ा फसवा उन्होंने कहते 5 तख्तां दे भांडे मांज के आने ने तू। इस तरह ही चलता है। महाराज कहते नहीं, ओमी ओमी का अर्थ है अनपढ़। पर सवाल उठता सी ये शब्द कित्थों आया? ओमी ते ओमिया। दास ने रिपीट कर लगा मैं कथा। असल च ये लफ्ज़ जिहड़ा सी ये अरबी का है, संस्कृत का नहीं, ओम चो नहीं। अरबी का एक शब्द है ओम, ओम विचों बनया ओमी। ओम का लफ्जी अर्थ है जी माँ। फिर उत्सुकता वधी भी माँ ते अनपढ़ के अर्थ की हो गए? इत्थे अर्थ आ रहे हैं ओमी अनपढ़। फिर अरबी विचों ओम दे अर्थ लभदियां असल च अरब की एक मनौत है कि जेड़ा बच्चा जन्म वेले ਉਹਦੇ फादर की डैथ हो जाए, ओमी कौन है? जन्म होया है, बच्चे दे बाप की डैथ हो गई, प्यो मर गया, माँ गरीबी दाह विच उस बच्चे नूं पालदी है, पर सारी जिंदगी निर अखरा रहिंदा, उहनूं अखर कोई नहीं होंदा, पढ़िया नहीं हो, अनपढ़, कोरा अनपढ़। ਉਹਦੇ ਲਈ शब्द ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ है ओमी। इस करके कहते आ
कि जिहो जिहा उम मां ने पेट चों पैदा किया इहो जिहा कब्र चला गया, इन्ने साल जिया पर सिक्ख्या कुछ भी नहीं। इथों शब्द बनया ओमी। मैं तां बेनती कर लगा हुण लफ्ज धर्म असी शुरू करना धर्मवीर ते युद्धवीर। हुण धर्म लफ्ज जिहड़ा है, मजहब लफ्ज जिहड़ा है, ते तीसरा चलो अंग्रेजी का तुसी आप जी रिलीजन मैनूं ते खरे आउंदी कोई नहीं जी इन्नी जिन्ना कोई समझ पई। धर्म लफ्ज संस्कृत की त्री धातु तो बनिया। ਇਹਦਾ अर्थ ना सिख ना हिंदू ना मुसलमान कुछ नहीं। निरोल धर्म शब्द का अर्थ है धारण करना, बेनती है। कोश मुताबिक धर्म का अर्थ है धारण करना। जिन्हें धारण कर लिया उन्होंने कहा जाता धार्मिक है। पर याद रखियो उत्थे ये नहीं कि धारण किया, सिर्फ लफ्जी अर्थ धर्म दे नहीं जी, धारण करना। उस तो बाद शब्द आउंदा मजहब। ये असल च अरबी की ज़ूब धातु तो बने। ਇਹਦਾ लफ्जी अर्थ है जी प्रकाश। मजहब का अर्थ है जिहड़ा रूहानी प्रकाश के थले जिंदगी जी रहा है। शब्द बड़ा प्यारा है मजहब। उस तो अगे आप जी का शब्द रिलीजन, जिहदे बारे कहा जाता है ਇਹਦਾ अर्थ है टू रीयूनाइट। टुटे होए नूं दोबारा जोड़न की जिहड़ी किरिया उहनूं रिलीजन कहा जाता है। हुण शब्द बड़े प्यारे ने। याद रखो कि अच कला मनुख धर्मी नहीं। मैं बाणी चो बेनती करांगा, जिस धरती ते जिस स्पेस विच असीं बैठे हाँ, जिन्ने ब्रह्मंड ने, जिन्ने खंड ने, सूरज ने, तारे ने, चंद्रमा ने, कोई ऐसा नहीं जिहड़ा धार्मिक नहीं। धार्मिक मतलब कि परमात्मा ने एक विधान बनाया। धर्म का अर्थ हुक्म भी है, धर्म का अर्थ धारण करना है, धर्म का अर्थ सहारा देना है। ये धरती तां टिकी हुई है क्योंकि ये उत्ते धर्म है। जे धर्म ना हुंदा ते धरती भी नहीं सी। आप जपजी साहिब पढ़ते हो, धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत। ये शब्द आप जी रोज़ पढ़ते हो। हालांकि हजूर ने इस विच उस मनोत का खंडन किया जिहड़ा सनातन मत कहंदा भी धरती दे थल्ले बल्द है, बल्द ने सिंह उत्ते धरती चुकी है। अर्थ कविक तां आउंदा है बल्द जिहड़ा अपना सिंह बदलदा है। गुरु ने कहा नहीं। हालांकि कई थावां ते इस प्रतीक नूं वरतिया, भाई गुरदास साहब ने वरतिया। बाबा जी जदों सिद्धां नूं मिलदे आ कहण लगे धवल खड़ा तर हेत पुकारा। हुण आपां कहांगे बाबा जी फिर धौल मन गए। वो सुनो बेनती है, महाराज ने इन्ने कमाल का लॉजिक दिता, दलील दी। कहते देखो ये धरती तुसीं कहंदे हो इहदे थल्ले धौल है, बल्द है। फिर बल्द है स्पेस तो है नहीं, वो किसदे खलोता। कहने लगे उहदे थल्ले होर धरती है। महाराज कहते जिहड़ी बल्द के पैरों थल्ले धरती उहदे थल्ले की। कहने लगे उहदे थल्ले होर बल्द। चली गए। सतगुरु कहते मैनूं एक गल का उत्तर दिओ, अखीर वाले बल्द किहदे सहारे। कहने लगे खीर वाला बल्द कोई नहीं, खीर ते धर्म के सहारे। महाराज कहते बल्द विचों क्यों वसाई जाते हो, सीधी गल करो। धौल धर्म, धर्म ही धौल है। तो वो धर्म की जिहड़ी एनर्जी है जां वो धर्म जिहड़ा है वो थोपिया नहीं, वो दया विचों पैदा होया। परमात्मा ने तरस किया टिकाण लई। धौल धर्म दया का पूत, ते जिन्हें सब नूं बन के रखे वो संतोख। धर्म दया ते संतोख तिन्नां दे संगम करके धरती खलोती हुई। महाराज ने चलो साइंस वाले होर तरीके इन्हां दी व्याख्या करनगे। धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूच। संतोख थाप रखिया जिन सूत। अगे महाराज दलील देंदे जे को बूझै होवै सचियार, धवलै ऊपर केता भार। धरती होर परै होर होर, तिसते पार तलै कमजोर। महाराज कहें जी जात रंगा के नाम सबना लिखिया वड़ी कलाम। कहते ने ये धर्म के सहारे है। मैं बेनती करा उस तो अगे धर्म शब्द एक तो इस पौड़ी च वरत्या, सुनियो इसनूं। ये परमात्मा की एक वो शक्ति है जिन्हें सब कुछ टिकाया होया। होर थोड़ा जिहा क्योंकि आप धर्मवीर की तो युद्धवीर की गल करनी तो मेरी इच्छा से मैं अर्ज कर सकां। उस तो बाद आपनूं पता होवे उस तो पहला एक शब्द जपजी साहिब च आउंदा होर धर्म। मन्नै मार्ग ठाक ना पाए, मन्नै पथ चों प्रगट जाए, मन्नै मग ना चलै पंथ,
ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਉਹ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖਰਿਆਂ ਪੰਥਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾ ਖੰਡ ਹੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਧਰਮਖੰਡ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਇਹ ਤੱਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਫਿਰ ਤੱਤ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਤੇ ਤੱਤ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਤਿਸ ਵੀ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਓਥੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਡੰਡੇ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਸਰਲੇਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੌੜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੌੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਪੌੜੀ ਕਿਤੇ? ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾ ਸੱਚ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਬੰਤਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੌੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਡੰਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਖਾਰ। ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਤੀ ਹੋਵੇ, ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਚੱਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਇਧਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੁੱਛੋ, ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਕਾਤ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ, ਹਜ ਜਾਂ ਹਜ ਕਰਨਾ ਆਸਥਾ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੁਕਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਣ ਵੀ ਦੱਸੇ, ਮੇਰ ਮਸੀਤ ਸਿਦਕ ਮੁਸੱਲਾ। ਹੁਣ ਜੋਗੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪੌੜੀ 'ਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾਤੀ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਦ ਢੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ। ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਵਾਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗਦੀਸ਼। ਹੁਣ ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਜ਼ੀ, ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਲਵੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਮੌਲਾਨਾ, ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਬਹੁਤ ਫੈਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਖਲੀਫਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਗਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੌਲਾਨੇ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਾਜ਼ੀ ਕੀ, ਤੇ ਉਂਝ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ। ਕਾਜ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਦੀ ਸੋ ਜੋ ਉਲਟੀ ਕਰੇ। ਕਾਜੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਉਲਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੌਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਲਟੀ ਰੇ ਮਨ ਉਲਟੀ ਰੇ ਸਾਕਤ ਸਿਉ ਕਰ ਉਲਟੀ ਰੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜੂ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲੇ, ਔਗਣਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕਾਜੀ। ਸਾਕਤ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਕਰੋ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਚੱਲ। ਸਾਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਉਲਟ ਚੱਲ ਕਹਿ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਲਟ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਈਵਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਡਨੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨੇਮ 'ਚ ਵੱਜਿਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਧਰਮ ਹੈ,
जिस अंदर सच्चे की विच जोत, गोज रत्न विच लुक रहे, कोई गुरमुख सेवक कड्डे खोत। ये भी धर्म है। इस तो अगे बेनती जी, धर्म की डेफिनेशन की उस दिन मर्ज की सी गुरु साहब ने। वख-वख किते जिन्हां नूं धर्म कहा, जोग शब्दंग, ज्ञान शब्दंग, वेद शब्दंग ब्राह्मण है, खत्री शब्दंग, सूर शब्दंग, सूदर शब्दंग, प्राकृत है। जोगी दा धर्म बना दिता ज्ञान, ब्राह्मण ने धर्म बना लिया वेद, खत्री दा धर्म रह गया लड़ना, शूदर दा धर्म रह गया बाकियां दी किरत करना। पर सतगुरु ने कहा नहीं, सर्व शब्दंग, सब दा इको धर्म है। एक शब्दंग एक ओंकार, सर्व शब्दंग एक शब्दंग, जे को जाने पिओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देव। सुखमनी साहब जी क्या, सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। फिर गुरु साहब की व्याख्या करते हैं, पर इस गल नूं सुनना औखा है, क्योंकि असीं दूजे दे घर च गल करिए बड़े चांबल के गल करनी, वो हिंदू आ मुसलमान आ, धर्म के चिन्ह धारण करने, गल बड़ी औखी। सब च दुनिया च सब तो सौखा है धर्म का भेख धारण करना, सब तो औखा है धर्म दीयां कदरां कीमतां नूं जिंदगी च वसा लेना। जनेऊ तो मिल जाता, बाबा जी ने कहा चौकड़ मुल अनाया बै चौके पाया, सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया। सिक्ख्या नहीं, सिखा नहीं सिखा सिक्ख्या दिती। 4 कौडियां दा तू सूत लै आंदा, तुसीं सुनोगे, मैं पूरे जोर नाल बोलांगा। जे 4 कौडियां दा जनेऊ तेनू हिंदू नहीं बना सकदा, जिन्नी देर तक गुरु गोबिंद सिंह दी रहत नूं जिंदगी च धार नहीं करदा, 1000 रुपये की कृपान भी तेनू पार नहीं कर सकता। बड़ा औखा। मैं क्या मेरे लिए बड़ा औखा शब्द कहना, कहणगे काकारां विरोधी नहीं, चिन्ह मिल जाते नहीं। गुरमुखो धर्म तो जिंदगी की बाजी ला के कमाना पैंदा है। बेनतियां कर करके दाता तरस कर, हर चिन्ह का कोई अर्थ है। ये भी चलो वक्री कथा भी चिन्हों की कोई जिहड़े हुण कहंदे ने भी चिन्ह का की मतलब। मैं तो मैनूं याद है अपने भाई जोध सिंह वाइस चांसलर, उन्होंने एक किताब लिखी सी गुरमत सिद्धांत। उहदे च उन्होंने कहा जिस दिन दुनिया च चिन्ह खत्म हो जाएंगे हर विकास रुक जाएगा। आ 35 अखर गुरमुखी दे पंजाबी जिहड़ी पढ़ने है तां साउंड ही याद रखियो। जे ई जां ईड़ी बोलिया बाहर का ढांचा चिन्ह ना बनाते तो ईड़ी का पता किवें लगदा। 26 अखर ABCD तुसीं साउंड ही है ना, उन्होंने चिन्ह दिते गए तो उन्होंने 26 चिन्हों के नाल बंदा अज पता नहीं कित्थों तक दुनिया की तलीम हासिल कर रहा। चिन्ह माड़े नहीं। मैं फिर बेनती करांगा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्होंने पुछो, वो कहते ने मेरा मकसद है जिंदगी का। शब्द मैं वरतन लगा पहला धर्मवीर, टाइम आई थोड़ा थोड़ा जिहा मैं ज़्यादा लेना। धर्मवीर गुरु गोबिंद सिंह जी की अपनी रचना है, उस विच अपनी जिंदगी का मकसद ते ईवन के अपनी कृपान का मकसद। तो मैं तीजी गल कह दिया, गुरु गोबिंद सिंह अपनी कलम का मकसद कहंदे, मैं क्यों कलम चुकी है। असी बचन पढ़ने महाराज जी का, हजूर दा हम एक काज जगत मोह आए, कादे लिए आए खां। अगली सतर है धर्म हेत गुरदेव पठाए, गुरदेव दर्थ अकाल पुरख। हम एक काज जगत मोह आए, धर्म हेत गुरदेव पठाए। जहां तहां जिथे किथे तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दोखियन पकर पछाड़ो। मैं उस दिन कहा सी इत्थे बिल्कुल नहीं कहा तुरकां नूं कल्ले मुसलमानां नूं। मैं रिपीट करांगा, जे मसंद भी दुष्ट बन गया तो गुरु ने वह भी पकड़ पछाड़ो कर दिता। भावें वो मंजी ते बह के बाणी पढ़दा सी, दुष्ट बनया। गुरु ने कहा नहीं, हम एक काज जगत मोह आए, धर्म हेत गुरदेव पठाए। जहां तहां तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दोखियन पकर पछारो। याही काज धरा हम जनमंग, समझ लिखो साधु सम मनमंग। धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपार। हजूर ने कहा मैं धर्म लिए आया। इत्थों तक जदों दशमेश की रचना पढ़ने बजुर्ग कह रहे सन, हजूर जे कलम भी चलाते आ उत्थे भी शब्द करते आ,
दसम कथा भगौत की, भाखा करी बनाए, अबर वासना नाहे प्रभ धर्म जुद कै चाहे। वासना दर्द तांग, मेरे च होर कोई तांग नहीं जेड़े मैं ग्रंथां दे उलत्थे करा रहा, कृष्ण अवतार कह रहा वां। जो कुछ मैं जंगा युद्धां शस्त्रां दा जिक्र कर रहा, मेरी बिल्कुल वासना ही नहीं कि मैं दुनिया उत्ते खविश नाल राज कायम करना है। बस इस करके वासना इक्को है कि धर्म युद्ध दे चाह दे लई मैं कलम भी चलाना पिया ते तेग भी चलाना पिया। महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह, मैं उस दिन कहा सी पिता जी की शहादत हुंदी, 3 शब्द वरते सन सरदार कपूर सिंह होना ने। उन्होंने एक लेख लिखिया सी गुरु गोबिंद सिंह बारे, उस विच 3 शब्दों में उन्हें कहा सी, मैं ये थोड़ी जी रिपीट की उस दिन कथा। गुरु तेग बहादुर की शहादत धर्म की स्वतंत्रता लई, धर्म की रखिया लई गुरु तेग बहादुर की शहादत आत्मक पुरख की गौरवता नूं कायम रखने दे लई। ये शब्द फिर सुनियो, तिलक जंयू राखा प्रभ तांका, धर्म की स्वतंत्रता है। मैं नहीं पांदा, पर जे किसी का अकीदा है, मैनू की हक है कि मैं उहदे अकीदे दी तोड़न तुर पावां। धर्म की रखिया लई, धर्म की स्वतंत्रता लई। दूजा शब्द सी धर्म हेत साका जिन किया, सच एवे कि धर्म की रखिया लई, धर्म की स्वतंत्रता लई। पर तीजा शब्द सी सीस दिया पर सिर ना दिया। सिर का अर्थ है अंदर की वो अवस्था जिथे गुरु तेग बहादुर पहुंचे, सिर लवा दिता पर अंदर का भेद मौत तो डरदिया नहीं दिता। आत्म पुरख की गौरवता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्होंने युद्ध किए 14। आओ जिस विषय वाल आप आना है कि धर्मवीर युद्धवीर। मैं 2 जंगां का सिर्फ जिक्र करांगा। भाई साहब नूं मैं कहा भी फिर वक्त मिले आप 14 दे 14 जंग कित्थे कित्थे लड़े, किवें लड़े, उन्हां दा जिक्र करांगे। 2 जंगां पावां कि अखीरली जंग महाराज की मुक्तसर दी। मुक्तसर तो बाद नहीं महाराज कोई जंग लड़ते। एक झपट हुंदी है राजपुताने विच, पर जिहड़ी सही जंग मुक्तसर दी है। पहली जंग पौंटा साहिब की धरती ते वे, अखीरली जंग मुक्तसर की धरती खदराने की ढाब जिथे आप नमस्कार करने स्थान। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्हां दी जंग 14 जंगां विचों कोई जंग राजसी भुख नूं लैके नहीं लड़ी गई। हो सकता सिख इस गल नूं कि यह कहें राज विरोधी नहीं। कोई जंग 14 जंगां तो किसी की जमीन ते कब्जा करने नहीं की गई। हाँ, एक जंग खास करके हुई है इस्त्री की खातर, पर याद रखियो वासना संयुक्त नहीं। बाबा अजीत सिंह लड़ते आ ब्राह्मणी नूं बचाउण की खातर, इस्त्री की अणख नूं बचाउण खातर। 4-3 शब्द वरतने आम सारे, जर जोरू ते जमीन। गुरु गोबिंद सिंह धर्म युद्ध लड़िया है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने दुनियावी इच्छा की पूर्ति वास्ते युद्ध नहीं लड़िया। इनू एक होर बेनती करते हैं कि असीं 2 शब्द वरतने, एक मीरी ते एक पीरी। गुरु हरगोबिंद साहिब तो उस दिन मैं कहा सी मीरी शब्द अमर तो बनया, अमर तो अमीर, मीर तो मीरी। मीरी का अर्थ पातशाह बाहर मुखी ते पीरी का अर्थ है अंदर दी पातशाह। मीरी ते पीरी का संगम है। पहली जंग गुरु गोबिंद सिंह जी ने 22 साल की उम्र च लड़ी है, भंगाणी दी। कई सज्जन 20 साल कहते हैं, 86 च कह देंगे 1686, पर मैं बेनती करांगा 88 तक महाराज रहे आ जी इत्थे पौंटा साहिब 3 साल। 20 कहो 22 कहो, महाराज ने उस समय दरम्यान 22 साल की उम्र च पहली जंग लड़ी है। इस जंग का थोड़ा जिहा हवाला असी दशमेश पिता जी रचना विचों भी लेने। गुरु गोबिंद सिंह आनंदपुर साहिब टिके, राजा मेदनी प्रकाश नाहनवाला ते राजा फतेह शाह दोनों का आपसी सरहद मिलती है ते झगड़ा रहिंदा है। मेदनी प्रकाश हजूर दे चरनां दा श्रद्धालु है, फतेह शाह भी सत्कार करता है। सतगुरु नूं बेनती करता है, महाराज तुसीं परबत सैल वास्ते आओ। महाराज पौंटा साहिब जाते आ। उंज वैसे बचित्र नाटक च दातार ने पौंटा नगर का
ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਪੌਂਟਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਗਰ ਦੀ ਥਾਂ। ਪੌਂਟੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਨੇ ਜੀ ਪੈਰ ਟਿਕਾਣ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ। ਪਾਵਟਾ ਦਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਚਾਲ ਹਮ ਤੇ ਪੁਨ ਭਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਵਟੇ ਕੀ ਸੁਧ ਲਈ। ਪਾਵਟੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸੁਧ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਉਂਝ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਚਾਲ ਹਮ ਤੇ ਪੁਨ ਭਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਵਟੇ ਕੀ ਸੁਧ ਲਈ। ਕਲੰਦਰੀ ਤੱਟ ਕਰੇ ਬਿਲਾਸਾ। ਕਲੰਦਰੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਯਮੁਨਾ। ਕਲੰਦਰੀ ਤੱਟ ਕਰੇ ਬਿਲਾਸਾ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੇ ਪੇਖ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਕੇ ਸਿੰਘ ਘਨੇ ਚੁਨ ਮਾਰੇ, ਰੋਜ਼ ਰੀਸ਼ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਬਿਦਾਰੇ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਕੌਪਾ ਤਬ ਰਾਜਾ, ਲੋ ਪੜਾ ਹਮ ਸਿਓ ਬਿਨ ਕਾਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਕੌਪਾ ਤਬ ਰਾਜਾ, ਲੋ ਪੜਾ ਹਮ ਸਿਓ ਬਿਨ ਕਾਜਾ। ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਦੇਖੋਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਹਜ਼ੂਰ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੁਰਦੇਵ ਆਪਸ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇ, 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਮਿਆਨਾ। ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਤੇ 5 ਘੋੜੇ ਇਹ ਅਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੜੌਦੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹ 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਉਹ 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬੋ ਗੁਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਬੋ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿਸਟਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਬੜੋਦਰਾ ਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਨਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਟੰਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਸਤਰ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਲਕੇ ਦੀ ਬੋਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਅੱਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਬੜੌਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੈਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਿਆ ਕੇ 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ। ਇਹ 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਤੇ 5 ਘੋੜੇ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਵੇਰਵਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਉਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਅਸਾਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਜਨਮ ਲਏਗਾ। ਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਸੁੱਚੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ। ਉਹ ਰਤਨ ਰਾਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੇਸ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਾਪ ਲਾਈ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦੇ, ਰਤਨ ਰਾਏ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਸਤਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਛਾਪ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਤਨ ਰਾਏ, ਥੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਦਾਗ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਾਗ ਕਾਹਦਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੋਤੇ ਦਾਗ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਹੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਏ ਬੇਟੇ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਅੰਦਰ ਬਰੂਦ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਮਾਈ ਨੇ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਈ, ਬਿਰਹਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਮ ਉਮਰ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਕਿਨ ਸਾਰੀ ਕਾਲੀ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਾਥੀ ਸੀ ਜੀ, ਨਿੱਕੇ ਕੱਦ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਕਿਨ ਕਾਲੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸੂੰਡ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਧਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਮੱਥੇ ਤੱਕ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਾ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਗੋਲ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਗੋਲਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ।
उस प्रसादे वर्गे निशानी नूं देख के उहदा नाम रखा गया प्रसादी गाते। वो चिन्ह लत्तां च भी जाते सन, चिट्टी तार पूंछ तक। इन्ना सिखा के लिया रतन राय, गुरुदेव तीर चलाते सन तो पछाण के लै आउंदा सी। महाराज दे चरण धोंदा सी, चौर सुंड च लैके चौर करदा सी। आनंदपुर साहिब के घेरे च प्रसादी भुख नाल तड़प तड़प के प्राण त्याग गया। मैं गल कर लगा भंगाणी दे योद्धे। फतेह शाह ने अपनी बेटी का रिश्ता भीम चंद के बेटे अजमेर चंद नाल कीता। वो आनंदपुर साहिब आके सारिया चीज़ां देख गया, 5 कला शस्त्र घोड़े सब कुछ हाथी। उन्हें अपना मंत्री वजीर भेज के कहा भी गुरु गोबिंद सिंह जी नूं ये सारी घटना अमृत संचार तो पहलां दी भी तुसी ये 5 कला शस्त्र हाथी ते छमियाना ते चौंकी ये मैनू भेज दिओ। मेरे पुत्र दा सगन है, मेरी वाह 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 हो जाएगी, मैं वापस मोड़ देंगा। अंदरों बेईमान सी भी एक करी लै दोबारा देनिया किने। जदों वजीर भेजा हजूर ने कहा नहीं, गुरु घर दी चीज़ राजियां दे घरां दा शिंगार नहीं बन सकती, ये संगत दी है, ये संगत विच ही रहेगी, तेनू नहीं मिलेगी। उहदे मन च गल बह गई, ईरखा करदा सी। ते ये भी याद रखियो, मैं फिर बेनती करा, ईवन कि हैदराबाद दे निज़ाम ने शेरे पंजाब नूं एक कीमती चाननी दिती, राम बाग शेरे पंजाब दे सिर ते लाई गई। उन्हें कहा चांदनी हटा दिओ, ये गुरु रामदास दे दरबार चाहिए। जदों लैके गए हुण सड़ चुकी है, सिर्फ राख है जी साडे कोल। उस वक्त लखां दी कीमत सी जदों निज़ाम ने दिती। जदों चांदनी लैके आए तो अकाल तख्त साहिब ते महाराजा रणजीत सिंह नूं 2 पिंड तनख्वाह लगे सन। चांदनी कहा सी अज तो बाद नहीं, दरबार च नहीं लगेगी, एक बारी तेरे सिर ते लग चुकी चांदनी गुरु ग्रंथ साहिब ते नहीं लगेगी। आपनूं पता होवे खजाने ते लगदी रही जिथे गोलक हुंदी सी, पर तोशे खाने विच बंब जदों वजे आ वो सिर्फ सड़ के राख हो चुकी है। मैं बेनती करांगा, गुरु लई वरती कोई चीज़ कोई निजी बंदा नहीं वरत सकता। महाराज ने कहा नहीं, ये नहीं दिती जा सकती। हुण उधरों भीम चंद का कुड़म बन जा रहा फतेह शाह। फतेह शाह गुरु गोबिंद सिंह नूं प्यार करदा, उन्हां दी सुलह भी कराई मेदनी प्रकाश नाल। महाराज जदों पौंटा साहिब गए आ तो यदी बरात लंघनी सीगा श्रीनगर जान नूं। एक श्रीनगर कश्मीर वाला, एक दूजा अजकल उत्तरांचल च कह सकना। रस्ता पैंदा सी पौंटा साहिब। ये मन दा बेईमान कहंदा भी गुरु गोबिंद सिंह नूं पौंटा साहिब आ पार करदिआं यमुना, बरात मेरे नाल राजियां दी, फौजां मेरे नाल ने, जांदिआं जांदिआं गुरु गोबिंद सिंह दा शहर भी उजाड़ देना, खत्म भी कर देना। महाराज नूं पता लग गया, सोए ते हन। महाराज ने गल कही, कहन लगे प्रेम नाल आउंदा ते सब कुछ सी, जे गुरु घर नूं नीवां दिखाना चाहता मैं बरात इहदी निकल नहीं देनी इत्थों। पै गया उत्थे काम, तकरार शुरू हो गया। महाराज जी 22 साल की उम्र जी, चढ़दी जवानी गुरु जी नूं। उत्थे फिर होया कि जी प्रोत पम्मा आया, अजमेर चंद आया, विआह दा साया मिथ्या सी, दिन मिथ्या सी। जे वल के जाते सन टाइम लगता सी, लंघते सन ते प्रॉब्लम खड़ी ना खुद कर ली। वो जदों आया 10 बंदे आए, महाराज कहते आ उस अजमेर चंद नूं, बेटा साडा किसी घर नाल वैर नहीं, असी वैर नहीं कमांदे, पर तेरे बाप ने इस घर लिए बड़े अपमानजनक शब्द वरते, तू जा सकना है? जे साडा अंदर बेईमान होवे, ये शब्द क्या असी तेन रोक नहीं सकते, कहने साडे घर च निर्मलता ही है। ये चला गया, पर भीम चंद विआह वाले दिन पहुंचे ही नहीं पहुंचा। पिछों गया जी, साया निकल गया, वल के होना पिया। जदों ये पहुंचा तो महाराज नूं सद्दिया सी फतेह शाह ने अपनी बेटी के विआह च, ते महाराज ने तंबोल भेजिया। जिवें अजकल सगन नहीं तुसीं कहंदे, सगन सौखा शब्द, तंबोल कई बारी बीड़े नाल भी शब्द तंबोल वरदे आ जी। तो मैं एक बार ये भी बेनती की सी बई इत्थे गुरसिखां कईयां क्या मैनूं चंगी लगी, असीं सारे कहने महाराज ने क्या तो फलाणे सिंह ने बीड़ा चुक लिया। याद रखियो बीड़ा लफ्ज इस्लामी है। पान मूँह च पा के कहंदा सी मैं बीड़ा चुक्या, सिख बीड़ा नहीं चुकदा हुंदा। बीड़े दे अर्थ की ते आपां करी की जाने, फलाणे सिंह ने बीड़ा चुक लिया। अगला पुछे भी तेनों पता बीड़ा काहदा बनदा?
ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਬੀੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਸ਼ਬਦ ਬੀੜਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੰਬੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦਾ ਤੰਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਦੀਵਾਨ ਨਾਨਚੰਦ ਗਏ, ਦਇਆ ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਤ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ 5 ਪੈਸੇ, ਦਇਆ ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਤ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੰਬੋਲ ਦਿਖਾਏ, ਦਸਖਾਣੀ ਸਨ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੰਬੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਖੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੰਬੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਥੋੜੀ ਝਪਟ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਤੰਬੋਲ ਲੈ ਕੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲੜ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬੜੀ ਸੀ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਕੌਪਾ ਤਬ ਰਾਜਾ ਲੋ ਪੜਾ ਬਿਨ ਹਮਸੇ ਕਾਜਾ। ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਗਏ ਸਾਂ, ਧੀ ਜਾਣ ਕੇ ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਲੜਨ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁਣੀ। ਇਹ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖਰਾ, ਭੰਗਾਣੀ ਵੱਖਰੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਸੰਢੌਰਾ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਆਸਥਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇ ਮੁਰੀਦ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਸੌੜਾਪਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਠਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਦਾਮਲਾ। ਜਦੋਂ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾਮਲਾ, ਦਾਮਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 500 ਪਠਾਨ ਸਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਚ ਭਰਤੀ, 500 ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਇੱਕ 5 ਜਰਨੈਲ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ 100 ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਏ। ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲੜਨਾ ਫੌਜ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨਿਕਲਣਗੇ ਵਿੱਚੋਂ। 500 ਪਠਾਨ, ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਸਨ। ਹਲਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਮਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਘਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜੱਟ ਬੂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਆ ਦੇ 5 ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਉਂਝ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੀਕਰਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਿਤੇ ਗਏ ਪਾਠ ਰਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਨਾਇਆ? ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਯੁੱਧ ਵੀਰ। ਬਸ ਮੈਂ ਥੋੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਾਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਅੱਜ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? 400 ਪਠਾਨ ਬੇਈਮਾਨ ਭੱਜ ਗਏ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਭੀਖਨ ਖਾਂ, ਹਯਾਤ ਖਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। 100 ਪਠਾਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪਠਾਨ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਜੰਗ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ।
जदों आए वो हत्थ च रखते सन वड्डा कुतका मोटा छोटा। महाराज जी को आए, इन्हां दा पिंड जी लुधियाने दे नेड़े खेरा, खेरी पिंड दे सन कृपाल दास जी। ये आए वेख्या महाराज हस पै, कह लगे चेले बाल के गए, कहना महाराज आप हाजिर हाँ। सतगुरु हस के कहती चलो पत्ते झड़ गए तां किहड़ी गल, जड़ कैवें पत्ते होर भी आ जाणगे, भी तू तो आ गया। भंगाणी दा मैदान चुनिया महाराज ने, दवल्ली जंग हुई। पीर बुद्धू शाह नूं खबर पहुंच गई तेरे भेजे कोई पठान दगा कमा के गुरु गोबिंद सिंह नूं धोखा दे के चले गए। वो फिर 700 मुरीद भरावां नाल ते 4 पुत्रां नाल मैदाने जंग विच उतरिया। वो अपने बच्चे लैके आया। जदों जंग शुरू हुई, मैं सिर्फ थोड़ा जिहा नक्शा आप जी नूं दसना चाहना। महाराज टिब्बी ते खलोते हैं, हजूर दे सिख, हर सिख लड़िया उत्थे, जो जिहदे हत्थ 'च लक्कड़ दी तोप भी महाराज ने चलाई उत्थे। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्हां दे कोल फिर कृपाल दास जी आए, कहते महाराज असी भी जूझांगे। सतगुरु हस पै, संत जी जै शब्द वरत्या भजन बंदगी तुसीं कर दिओ। कहते नहीं दाता, हत्थ 'च कुतका पकड़िया, बिना लगामा पकड़िया घोड़े ते चढ़ गए कृपाल दास जी। गुरु गोबिंद सिंह बड़ा सोहना एक नक्शा पेश कर दिया। सामने पठान आ गया हयात खां, जिहड़ा दगा दे गया वो भीम चंद नाल रल गए सन। सामने आया हयात खां, कृपाल दास ने विगारिया वो नमक खा के हराम करने वाले शब्द ही वरते, गुरु घर नूं धोखा देने वाले। हयात खां वेख कहंदा बाबा जी किदां मिलते तो रहे सब। कृपाल दास कहंदे मैं तेरे नाल मुकाबला करना है। वो अगों कहंदा है कि लड़ोगे मेरे नाल। उन्हें टोप पाया, संजो पाया, हत्थ 'च बरछा पत्था तीरां नाल भरिया, तलवार टंगी ते बाबे कृपाल दास को ना कोई सिर ते ना कुछ संजो, हत्थ 'च मोटा सोटा पकड़िया बस। वो हस के मजाक कर कहंदा बाबा जी कड़ा प्रसाद छको, लंगर छकिया करो। कृपाल दास वीर रस च आया, कहंदा उस प्रसाद की किरपा नाल अज मैं तेनों वंगारन आया। हजूर कहंदे ने देख रहा ऐसा सी। हयात खां वार करदा है, कृपाल दास अपने लकड़ दे कुतके उत्ते उहनूं रोक लैंदा है। इक्को दम दोनों हत्थां सोटा पकड़ के हयात खां दे सिर ते लोहे दा टोप सी। बाबे कृपाल दास ने पूरे जोर नाल ओदी खोपड़ी च टोप उत्ते सोटा मारिया। इन्ने जोर दा वज्जा, लोहे दे टोप चो इस तरह मिज निकली। गुरु गोबिंद सिंह कहते हैं जिवें कृष्ण ने मक्खन की मटकी तोड़ दी हो। हजूर ने उत्थे शब्द क्या है, वो बेनती, वो शब्द है कृपाल कोपियं कुतको संभारी। ये हजूर की बाणी है। कृपाल कोपियं कुतको संभारी, खटी खान हयात के शीश हारी, उठी छिछ मिजंग कटा मेर जोरंग, मानो माखनंग मटकी कान फोरन, मानो माखनंग मटकी कान फोरन। एक सारा सिर खिलर गया। महाराज ने देखा, हस पै, कह लगे स्वाद आ गया संत जी अज। बीबी वीरो दा पुत्र शंगो शाह, दूसरा पुत्र, ये 2 शहीद भूआ दे पुत्र अखां सामने होए। अखीर ते पहाड़ियां दा जिहड़ा शिखर दा तीरंदाज सी हरी चंद, वो फिर महाराज दे सामने आया। बाई संगो शाह नूं इहने मारिया, शहीद कीता सी। ਉਹਦਾ सट वजी, बेहोश हो गया। ये उठिया। हरीचंद पुछदा जंग दा की बनिया? कह लगे चढ़ रहा। फिर गुरु गोबिंद सिंह दे सामने आया, हजूर नूं वंगारिया। उम्र करके वड्डा, जंगां दा तजर्बा बहुत, मारे तो पहली जंग लड़न लगे। सतगुरु वेख के कह लगे हरीचंद वाकई तू सूरमा है। कह लगा मैं सूरमा की हाँ, मैं तुहाडे नाल मुकाबला करना। हजूर कहते चेते रखी, मैं भी चाहना फैसला जंग का शाम तो पहला हो जाना चाहिए। 2 गल्लां याद रखी, अज पहली जंग है, मैं हर हालत में जितांगा, जे ना जितया मैं शहीद होवांगा। मैं इस तरह घर हार के वापस नहीं जाना। 2 गल्लां चेते रखी, जां जितांगा जां शहीद होवांगा, पिठ नहीं। पर तीजी गल मैं तेनों होर कह दियां, अज गुरु घर का असूल तेनों दस दियां, असी पहला तेरे ते बिल्कुल वार नहीं करना।
तू 3 वार कर, जे तू मार गया मैदान तेरे हथ च, जे बच गया फिर मैं तेरे नाल गल करांगा। महाराज ने 3 वारां दा जिक्र किया अपनी रचना च। हजूर कहंदे ने हरी चंद गुस्से च आ गया, क्योंकि अज तक उन्होंने किसी कहा नहीं सी पहला वार कर। हरी चंद गुस्से च आया, उन्हें अपने भत्थे चो तीर कढ़िया, लोग गए सारे भी हुण जंग का फैसला 2 सूरमियां ने करना। महाराज कहते पहला तीर आया नाग की तरह शूकदा, साडे घोड़े नूं वज्जा। सतगुरु कहते ने बनाया निशाना मैनू सी, घोड़े नूं वज्जा। दूजा तीर उन्हें मेरे मत्थे च मारना चाहता सी कि इत्थों खोपड़ी उड़ा देंगा सारी। सतगुरु कहते हैं सचमुच उड़ने सप की तरह आया तीर, मेरे कन्नां नूं स्पर्श करके अगे निकल गया। कह लगे अकाल पुरख ने मैनू हथ दे के बचा लिया। तीसरा तीर उन्हें महाराज दे सीने का बनाया, हार्ट का, क्योंकि पॉइंट सन कोई जिथे वजे शस्त्र। तीसरा तीर हजूर कहते जदों मारिया उसका निशाना चुकिया, साडी पेटी विच वजा। पेटी मारे ने तस्मे रेशमी तस्मिਆਂ ਨਾਲ बन्नी सी, पेटी विच वजदा विन्हदा होया तीर। गुरु गोबिंद सिंह कहते सब वेखते पै सन, तीर गड्ढिया गया, अंदर चला गया। हजूर कहते कोई ज़्यादा सट नहीं लगी, जख्म नहीं आया, सिर्फ तीर की एक मुखी नोक साड़ी सकेने चुभी। जदों अपना खून देखा बरसी फिर संभालिया। आ महाराज दे बचन ने हरी चंद कोपे कमानंग संभारन, अर्थ बड़े सौखे ने। हरी चंद गुस्से च आया, उन्हें कमान संभार ली। हरी चंद कोपे कमान संभारंग, प्रथम बाजिंग ताण बाणंग प्रहारंग। पहला तीर साडे घोड़े नूं बाज धीड़े घोड़े नूं मारिया। दुतीया ताक है तीर मोको चलाएंग, दूजा तीर मेरे ते चलाया। रखिया दाईव कान शवै कै सधाएंग, परमात्मा ने खत दे के बचा लिया, कानू छू के चला गया। तृतीय तीर मारियो सो पेटी मझारंग, पिदंग चलकितंग दवाल पालंग पधारंग। चुभी चिंच चरमंग कछु न काए आयंग, कलंग केवलंग दास जानंग बचाएंग। जदों तीर बाहर कढ़िया फिर गुरु गोबिंद सिंह लिखते ने जब बाण लाग्यो तब रोज। ये असल च उत्थे आउंदा है ये छंद विचित्र नाटक च। हुण इहनूं तुसीं कह दे भी गुरु गोबिंद सिंह की गल नहीं सुनानी तो असीं की सुनाईए जी। महाराज की लिखत है एडी वड्डी परोपकार की घटना नूं दबाना कित्थे लेखे देंगे। महाराज कहते चुभी चिंच चरमंग कछु न काए आयन, कलंग केवलंग दास जानंग बचायन। जब है बाण राग्यो तब है रोष जाग्यो, करंग लै कमाणंग। महाराज कहते मैं कमान छिकी। हणंग बाण ताणंग सब है भीर चलाए, धाए सरोगंग चलाए, 100 करोड़ राएंग वाहे काल काएंग। महाराज कहते इको तीर मारिया परो के रख दिता। खरी चंद मारे सो जोधा लुतारे, भई जीत मेरी कृपा काल केरी। रणंग जीत आए जैन गीत गाए। महाराज कहते पहली जंग असी फतेह करके आए। ये भज गए सारे। याद रखियो इन्हां दे संस्कार भी गुरु गोबिंद सिंह ने किए। जे युद्ध वीर है धर्मवीर है, उसकी लाश नूं रुल नहीं दिता। शाम नूं जंग समाप्त हो गया, पहली जित सी। पीर बुद्धू शाह दे 2 पुत विच शहीद हुए। पीर जी खुद जूझे, मुरीद जूझे। यही कारण हजूर जदों बंदा सिंह बहादुर नूं तोरदे ने एक गल कहंदे आ, संढौरे जरूर जाही, उत्थे सानूं मुहब्बत करने वाले पीर दे टुकड़े कीते गए सन। संढौरा बंदा सिंह बहादुर ने फूक के रख दिता आसमान खान। हजूर शाम नूं दस्तार लाई, केस करते पे कंघे नाल। हुण इहदा मतलब ये गल चेते रखियो कि अमृत संचार 99 च हुंदा है, जंग 1688 नूं हुंदी है। कंघा गुरु गोबिंद सिंह उस तो पहला वरदे पे। याद रखने वाली गल्लां ने कि कंघा मारे ने दिता, जे वरदे ते दिता ना, कंघी तो नहीं दिती। दस्तार मारे च बांधे ते दस्तार दिती। पीर बुद्धू शाह हजूर दे चरना च आउंदा है। सतगुरु कहंदे पीर जी सानू हमदर्दी है तुहाडे नाल। मैं जिक्र जरूर करना चाहना उस धर्मी महापुरख दा। पीर जी हमदर्दी है, जो मंगोगे झोली दे दियां पा देंगा। तुहाडे पुत 2 शहीद होए। उत्थे पीर जी कहंदे सतगुरु मम पुत्र मरे शुभ थाना, एक तो रण खेत महाना। पुन कारज तुमरे आए
इम कहवै बिजत सदाए दाता। मैं खुशकिस्मत हाँ जिहदे पुत गुरु नानक दे घर विच लेखे लगे। महाराज कहंदे कुछ मंग। सतगुरु दियां जुल्फां देखियां, केस देखे, झोली अड्ड के कहंदा है बस आ कंघा ते जुल्फां पा दे, मेरे पुत्रां तो भी बहुत कीमती ने। महाराज ने दोनों पा दिते, कंघा दिता, केस दिते, अद्धी दस्तार दिती। हजूर ने कहा तू ज़ाहर पीर है। पीर बुद्धू शाह घर चला गया। मैं एक इत्थे बेनती करांगा, भाई वीर सिंह दा कलगीधर चमत्कार च नसीरां वाला प्रसंग जरूर पढ़ियो। पीर जी घर जांदे आ, नसीरां इन्हां दी घर वाली। मैं सिर्फ तुहाडे 10 मिनट होर लांगा, काले ना पिया जे, मैं समाप्ति करनी है। हजूर सच्चे पातशाह जी दे कोलों विद्या होके जांदा है, नसीरां देखदी है। पीर बुद्धू शाह दी घर पहुंचदे आ, 2 पुत्तर कोल ने, 2 नहीं दिसदे। मां है ना, इक्को दम थले उतर कोठे ते राह देखदी पुछदी है सुख तां है मेरे पुत्तर। साडे एक विद्वान सन, बहुत सोहने कवि सन, प्रीतम सिंह जी काशद, शायद सुनिया होवे किते, रचना तो उन्हां दी मिल जांदी है। वो कहंदे ने पीर जी अंदर चले गए, कहन लगे नसीरा अंदर आ। पर खुश सन पीर जी, कहन लगी मेरे पुत्तर मैनूं बोलदे क्यों नहीं। कपड़ा खोल के केश ते कंघा दिखा के कहंदा नसीरा गुरु गोबिंद सिंह मेरा यार बन गया है। देख नसीरा मेरे नसीब जोर कर गए, गुरु गोबिंद सिंह मेरा यार बन गया। कहंदे मैं पुत्त बारे पुछ रही हाँ। कहन लगे दुनिया च सब तो कीमती पुत्तर हुंदे ने, मैं पुत्त गुरु गोबिंद सिंह दी झोली च पाया, ओदी सब तो कीमती निशानी केस ते कंघा लै आया। जदों यार बनाई दा एक दूजे नूं कीमती निशानी दई दी है। मेरा मित्र बन गया। नसीरा बहुत रोई। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ प्रोफैसर पूरन सिंह ने बड़ी उडारी मार के कीता है। वो कहता है यही कहती रोई गई, पुत गवा दिते, लाडा नाल पाले किथे ला दिते, रोंदी सुपने चली गई। नींद आई, सुपना आया, सुपने विच गुरु गोबिंद सिंह मिलते आ। कहते ने नसीरा तेरे पुत गवाचे नहीं, आ देख अल्लाह के घर विच प्रवान हो गए। नेत्र खुलदे आ, रोंदी है पर हुण रोने च फर्क है। पीर जी नूं कहंदी मेरे पुत, कहंदे हुण ना बोली गवाच गया। कहंदी नहीं, मैं कहनी हाँ वो कलगी वाला जिहदियां सिफतां तुसीं करदे रजदे नहीं, मैं प्रतख तां नहीं देखिया, सुपने च झलक दे गया। अफसोस ये वे 2 पुत्र बचा के क्यों ले आए। पीर बुद्धू शाह दे पुत शहीद होए, महाराज ने भंगाणी दा जंग जित्तिया। तो मैं इक्को गल कहना वा, मैनूं याद है प्रिंसीपल सतबीर सिंह ने एक बारी लैक्चर किया, उन्हें शब्द कहे सन, लाहौर शायद गए सन, कहते उत्थे उन्हां दी अंश विचों लबा रखदे आ कई अजे, जो उन्हां बोलिया कहते असीं मजाक च ही पुछ लिया कि तुसीं लबा रखदे हो। उन्होंने गंभीरता नाल कहा सिखो तुहानूं तां तरस करके सब कुछ मिलिया सी, पुत दे के केस लैके आए सन। मैं एक बेनती करांगा भाई साहब नूं पुछो, दीन दुनिया दर कमंदे आ परी रुखसारे मां, हर 2 आलम कीमते यक तारे मुवे यारे मां। भंगाणी तो बाद हजूर आनंदपुर साहिब आए। हजूर ने 12 लड़ाइयां, तकरीबन 11 लड़ाइयां उस तो बाद लड़ियां ने, 12 हो गईयां। मैं सिर्फ एक जंग चमकौर साहिब दा धर्म युद्ध ते युद्ध वीर, गुरु साहब ने जो जंग लड़े असूल ते, चमकौर दा जंग दुनिया दा अदुੱਤੀ जंग है, जिस दी काफ़ी हिस्सा गुरु गोबिंद सिंह जी जफरनामे च देंदे आ। गुरशना च कारी कुनद चिहल नर के 10 लख बरायद बरो बेखबर। एक पासे 40 प्रशादे तो बिखून, एक पासे 10 लख मुलखैया। फिर ये भी कहते आ कि पेमाश कन बेदरंग आमदंग, के पेमाश कन बेदरंग आमदंग, मया तेगो तीरो तुवंग आमदंग, बा लाचार की दरमा आमदंद, बा तदबीर तीरो कमा आमदंद। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ गुरु गोबिंद सिंह ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੁਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ, ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦ ਨੇ ਬਾਏ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ।
7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾਤਾ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਜੰਗ ਚੜਿਆ, ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕੁਝ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੌਜ ਨਵੀਂ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹੀ ਨੇਮ ਨਿਭਾਇਆ, ਪੁੱਤ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗਾ, ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰੀ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਨਿਕਲੀ। ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਵੇਖੋ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਖੋਪੜੀ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਖੋਪੜੀ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਜੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਬੂਦ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਰਦੂਦ ਲਿਖਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਵਾਕਈ ਬਹਾਦਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਚੋਖੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਇਹ ਸਿਰ ਬਚਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਖੋਪੜੀ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆ ਖਵਾਜ਼ਾ ਮਰਦੂਦ ਇਹ ਸਾਇਆ ਇਹ ਦੀਵਾਰ, ਨਿਆਮਤ ਬਾ ਮਰਦਾਨ ਇਹ ਵਾਰ। ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦਰੇਗਾ ਅਗਰ ਰੂਵੇ ਆਦੀਦ में बा यक तीर लाचार बशीद में। दिस पैंदी ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪੋਹ ਦੀ ਦਿਨ ਸੀ, 8 ਪੋਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਂਝ ਡਾਕਟਰ ਲਤੀਫ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਦਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਹਰੀ ਰਾਮ ਗੁਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ। 39ਵਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਸ ਦੀ ਸਬਤਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ 5-5 ਦੇ ਜਥੇ ਭੇਜੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਢਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪੁੱਤ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਭਿੱਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਕਾ ਅਜੀਤ ਹੂੰ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ੋਰੇ ਤੇਗ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਕਾ ਅਜੀਤ ਹੂੰ जीता ना जाऊंगा, जीता तो खैर हार के जीता ना आऊंगा। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜੇ 5 ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜੂਝੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪਿਸਰ खूब दलेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो गोबिंद के फरजंद बड़े हो। बाबा अजीत सिंह की शहादत तो बाद बाबा जुझार सिंह जाते ने जी, साहिबजादा जी। महाराज के चेहरे ते कोई मलाल नहीं। मैं कहना सच्ची गल जे असीं तां कथे ही करने आ जां बैराग च रो पैने आ, किहड़ी चीज़ लिया के मैं तुहानूं दसां जिहदे नाल तुलना दियां गुरु गोबिंद सिंह ऐसा। कोई पीर, कोई पैगंबर, कोई अवतार ईरखा च नहीं। सच है भी उस मर्द अगंबड़े वर्गा कोई नहीं, वो कला ही है। वह प्रगट्यो मर्द अगंबड़ा, वरियाम अकेला, दूजा कोई है ही नहीं जिहड़ा मेरे सतगुरु मर्द अगंबड़े का मुकाबला कर सके। वड्डा शहीद होया। सीतल साहब कहते आ, जुझार सिंह बाबा जी ने आके बेनती की, पिता जी जोड़ी नूं हुण तोड़ो ना, मैनूं तोड़ दिओ वीर पिछे। सीतल साहब ने गल बड़ी सोहनी लिखी, पता नहीं उन्होंने कित्थों ली गल, उन्होंने दिती। कहते हजूर ने जुझार सिंह के मोढे ते हथ रखिया, फिर चेहरे नूं पकड़िया, मत्था चुम के कहते मेरे लाल, जे मैं आवाज़ मार के मैदान विच तोड़दा ते कौम च कमज़ोरी आउणी सी। अज तू खुद अपने आप नूं पेश कीता, रहिंदी दुनिया तक जदों पंथ ते भीड़ा पैगी, तेरे वर्गे नौजवान बिना आवाज़ मारिया धर्म युद्ध विच कुद्या कर। ये गल वखरी कि लीडर बेईमान हो गया, पर सिखां ते गल सिरे ला दी ना।
नौजवानों ने तो सिरे लाई। बाबा जुझार सिंह नूं तोरदियां एक बड़ा करनामी दृश्य है युद्ध वीर गुरु का। कहने लगे बाबा जुझार सिंह कहते पिताजी भाई से बिछड़ कर हमें जीना नहीं आता, खाना नहीं सोना नहीं पीना नहीं बाता। महाराज कहते आ बेटा हमने कहा था बाप को जा दीजै धर्म पर, लोग कहते हैं अब आपको जा दीजै धर्म पर। अगले शब्द ने बेटा हम देते हैं खंजर इसे शमशीर समझना, हम देते हैं जो तैयार किया, हम देते हैं खंजर इसे शमशीर समझना, नेज़ों की जगह दादा का तुम तीर समझना, जितने मरे इससे उन्हें बेपीर समझना, जख्म आए तो रोना नहीं दलगीर समझना, जब तीर कलेजे में लगे सी नहीं करना, उफ मुंह से मेरी जान कभी नहीं उचरना। मेरे पुत तू चल। बाबा जुझार सिंह तुरदे आ, अखीरली इच्छा की है। वो लिखदा विद्वान हजूर ने तोड़ दिया सब कुछ पत्थे च पा के जदों दरवाजा खोलिया गड़ी दा आवाज़ दे के क्या जुझार सिंह तुरदियां घोड़े की लगाम पकड़ांदियां बेटा ख्वाहिश है कि तुम्हें तेग चलाते हुए देखे, हम आंख से तुम्हें बरशी खाते हुए देखे। मैंने दसो कोई है ते असी एडा वड्डा गुरु इन्ना परोपकारी गुरु खून नाल सानू सिंजन वाला असी हथ जोड़ के कहने 8 तरीक नूं अमृत छक लिया जी। यही है ना, ये तो चाहिए सी सिख का बच्चा कोई अमृत तो बिना हुंदा ही ना, जिहड़ा सिख हुंदा है। हजूर सच्चे पातशाह ने पुत तोरिया, अखां सामने बाबा जुझार सिंह शहीद हुए। मैं बेनती करांगा की लोड़ सी गुरु गोबिंद सिंह जी दे लई। वो कहते हैं मेरी कलम का कोई मकसद नहीं, ये अर्थ गलत ना करी जाओ, जो कुछ मैं लिख रहा धर्म युद्ध के चाहे, तो जी मैं खड़क पकड़ी है ये भी कली जुल्म नहीं, एक सुख संता करनंग दुर्मत दरनंग ए सवैया खंड बेहंडंग खलदल खंडंग अतरन मंडंग बर बंडंग पुज दंड अखंडंग तेज प्रचंडंग जोत अमंडंग पान प्रभंग सुख संता करनंग दुर्मत दरमंग दरनंग किल विकारनंग आसरणंग जय जय जयकारन शिष्ट उभारन मम प्रतिपारंग जय दे जय तेग अस कृपान खंडो खड़क तुबर तबर अर तुबक तबर अर तीर सैब सरोही सैथी ये हमारे पीर। सर्वलोक की रक्षा हमने, सर्वकाल की रक्षा हमने। गुरु गोबिंद सिंह उन्हां दा हर जंग धर्म युद्ध है, होर कोई वासना उन्हां दे अंदर नहीं। महाराज चमकौर दी गढ़ी चों निकलदे आ ते मैं बेनती कीरा जदों जफरनामे पढ़ रहे सतगुरु का सिदक 2-3 शेर सिर्फ कहांगा। एक तो खास करके जदों दास्तान का जिक्र करते आ उस तो पहला कहते औरंगजेब उन्होंने संबोधन जिदे सिर दे उत्ते खुमा होवे। अरबी विच हिंदू पोइट्री इंडियन पोइट्री च नहीं, अरबी पोइट्री ज़्यादातर खुमा का जिक्र होंदा है। कहा जाता खुमा एक पंछी जिदे सिर तो लंघ जाओ खुशकिस्मत। महाराज कहते आ औरंगजेब मेरे सिर ते अकाल पुरख का साया है खुमा का, तेरे वर्गे चलाक कां मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। हुमारा कसा साया के आयद बजेर बरोदस्त दारद ना जागे। फारसी च जागे दर्द कां है, पंजाबी वाला जागे दी। हुमारा कसा साया के आयद बदेर बरोदस्त दारद ना जागे दलेर। कसे पुष्ट उफदत पसे शेरे नर ना गिरद बूझो मेशो आओ गुजर। औरंगजेब जड़ा शेर दे गार कुल खलोता होवे ਉਹਦੇ सामने भेडां बकरियां ते खरना ਉਹਦਾ की बिगाड़ सकती है। एडी चढ़दी कला। इस तो अगले 2 शेर ने होर। महाराज कहते आ चा शुद्ध कि चूं बचगा कुछ तै चार, की होया तू मेरे 4 पुत्र को के मार दिते कि बाकी बेमादस्त पेची दा मार। अजे खालसा बैठा कुंडली सप शब्द वरते होंगे जे मर्दी के अगर खामोशा कुनी 4 चंगियाड़ियां बुझान तुरियां कादी बहादुरी के आतिश दमारा फरोजा कुनी। शायद तेन पता नहीं अजे तेरे लत्ता थले अग दा भांबड़ बलन वाला। देखो ये जफरनामे सारे शेर ने, कोई तरले वाली गल नहीं। महाराज फिर एक गल कहते ना इमां प्रस्ती ना ओजाएं दी
ना साहिब शनासी ना मुहम्मद यकी। लोग साडे असीं तुहाडी बड़ा पक्का मुसलमान। गुरु गोबिंद सिंह कहंदा दुनिया च सब तो वड्डा बेईमान लभना होवे ते औरंगजेब। ये शेर है। ना ईमान प्रस्ती, तू ईमानदार नहीं, ना ओज़ाएं दी, ना साहिब शनासी ना मुहम्मद यकी। ना तेनू अल्लाह की शनाखत है, तो ना तेनू मुहम्मद साहब ते भरोसा है। अगला शब्द, तुरागर नजर हस्त लश्कर वाजर। तेरी नज़र सिर्फ अपनी फौज ते अपनी लश्कर ते, पर मैं पुत्रां दी लाश कोलों निकलिया, मेरी नज़र रब दे शुक्र ते सी। तुरागर नजर हस्त लश्कर वाजर के मारा नगा अस्त यजदा शुक्र। मैं बेनती करांगा गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर चों निकलदे, सिर संखेप जे उत्थे पंज सिंह गुरमता हुंदा है जी, गुरगद्दी का जिक्र चलता है। महाराज गढ़ी चों निकलते आ। पंजाबी दे एक शायर ने बहुत सोहणियां सतरां लिखियां, मैनूं चंगियां लगियां। है तो दे ख्याल, कहंदा लालां दी शहादत हो गई, कपड़ा नहीं पाया खफन, कोलों निकल गए। मैं फिर बेनती करा, मैं तुसी बिल्कुल सौखा लगता पे बच्चों वाले हो, वो तो आग्याकार पुत्र सन, हुक्म रजाई चलन वाले पुत्र सन। इत्थे तां नलायक भी किते दुख च आ जाए तो साडियां अंदरां कलप उठदियां। महाराज गढ़ी वाल देख के रात नूं कहंदे आ, रखी सांभ के गढ़ीए चमकौर दिए, इत्थे लाडले मेरे शहीद सुते। रखी गा सांभ के गढ़ीए चमकौर दिए, इत्थे लाडले मेरे शहीद सुते। मोए होए भी जो मुस्करांदे ने, इत्थे मेरे ने ओ मुरीद सुते। आउण वाला इतिहास ना कह मैनू, आउण वाला इतिहास ना कह मैनू, मैं सिख शहीद करा चलिया। मैनू भौंदी दिलदारी खालसे दी कोल अजीत जुजार बिठा चलिया। महाराज सच्चे पातशाह निकलदे आ जी। मुगसर दा जंग गुरु लड़दा है, टुटिया नूं फिर गंढ लैंदा है, बख्शिश करते ने। नदेड़ दी धरती ते पहुँच के गुरमुखो सब कुछ पंथ दी झोली च पा दिता, ग्रंथ दे लड़ ला दिता, पंजां नूं जुगत दे दिती ते तुर लग्या। कह दिता खालसा जी तू मत सोची मैं किते तुर चलिया, तू रहत कमा के बाणी पढ़ी, मैं तेनू वादा करना मैं हर सिख दे सीने विच होवां करांगा। गुरु गोबिंद सिंह हर भावना वाला, शरदा वाला, भिज के बाणी पढ़न वाला, रहते पैरा देने वाला गुरु गोबिंद सिंह तो हर सिख दे नाल है। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करूँ निवास। असी 8 दिन तकरीबन, ये बिल्कुल बरीफ आप चले हैं, कोई ये नहीं भी बहुत कर गल्लां। गुरु गोबिंद सिंह का पारावार की है, बस अखीर ते मैं इक्को है तो पंजाबी दी सतरां गुरु गोबिंद सिंह जी ने की कीता वो तुहानूं सब नूं होना चेते। खुशी नाल कुर्बानियां देन चले, जोड़ी इस पासे जोड़ी उस पासे, अद्धे चमकौर सरहंद। खुशी नाल कुर्बानियां देन चले, जोड़ी इस पासे जोड़ी उस पासे। उस वेले सरकार नूं दर्द है सी, खिच है सी, थोड़ी इस पासे थोड़ी उस पासे। ये तां कोई भी आख नहीं सकता है कि जोड़ी इस पासे, संसार च बच्चे नहीं बचाए, जोड़ी इस पासे तोड़ी उस पासे दा अर्थ वाहिगुरू दा पासा। खुशी नाल कुर्बानियां देन चले, जोड़ी इस पासे जोड़ी उस पासे। उस वेले सरकार नूं खिच है सी, थोड़ी इस पासे थोड़ी उस पासे। ये तां कोई भी आख नहीं सकता है कि जोड़ी इस पासे तोड़ी उस पासे। चारे पुत्र दशमेश ने वार के तोड़ी इस पासे जोड़ी उस पासे। उन्होंने अकाल पुरख वाहिगुरू का शुकराना किया। असी बस यही लिया है कि प्रेम वीर, विद्या वीर, कर्म वीर, धर्म वीर, युद्ध वीर, दान वीर। मैं बेनती करांगा कि असी 8 दिन जिन्ने शब्द बोले, यत्न किया कलगीधर दी सिफतो सलाह की जाए।